Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, algebraic expressions. In class 6, we have seen how simple algebraic expressions are useful in formulating puzzles. We have also learnt about the symbols involved in algebraic expressions such as constants and variables. In this chapter, we will learn about the addition and subtraction of algebraic expressions. But before proceeding further, let us revise what we have learned in our previous class. अब previous class में हम constant variables के बारे में जो पढ़ के आए थे, थोड़ा सा से revise कर लेते हैं. Constant and variables. In algebra, we generally come across two types of symbols, namely constants and variables. A symbol having fixed numerical value is called a constant. For example, these are constants. Variable, a symbol which takes various numerical values is called a variable or literal. A variable is represented by a letter of the alphabet. For example, the circumference of a circle of radius r is given by the formula c is equals to 2 pi r. Here 2 and pi are constants while c and r are variables. देखिए जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है ना उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं और बाकी आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं आपके वो वेरिएबल्स होते हैं. Now algebraic expression. An algebraic expression is a combination of constants and variables connected by some or all of the four fundamental equations plus, minus, multiplication, division. For example, are algebraic expressions. Terms of an algebraic expression, the different parts of the algebraic expressions which may be a variable, a constant, a combination of constant and a variable or constant of two or more than two variables separated by the sign plus or minus are called the terms of expression. For example, the algebraic expression 5x plus 8 is consisted of two terms, 5x and 8x. Similarly, the expression 7x square minus 2xy plus x square has three terms, 7x square minus 2xy and y square. Types of algebraic expressions. First, monomials. An algebraic expression containing only one term is called a monomial. जिसमें आपकी सिर्फ एक टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल. देखिए, एंड बाइनोमियल जिसमें आपकी दो टर्म्स होती हैं, जैसे कि 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y, एक टर्म आपकी ये है और दूसरी टर्म आपकी ये है. इसी तरह से आपके जो ट्रायनोमियल्स क्या है जिसमें आपकी थ्री टर्म्स होती हैं, जैसे कि देखिए x प्लस 7y प्लस 3z. एंड quadrinomials, an algebraic expression containing four terms, जिसमें आपकी four terms होंगी वो आपका है quadrinomials. And polynomials, an algebraic expression containing one or more terms is called a polynomial. Therefore, monomials, binomials, trinomials and quadrinomials all are polynomials. Polynomials का मतलब क्या है कि वो algebraic expression जिसमें एक या एक से ज़्यादा terms हो, इसीलिए सभी को आपके जैसे हैं कि monomials, binomials, इन्हें हम polynomials कहते हैं. Factors of a term. Consider an algebraic expression 8x square plus 3xy. It has two terms, 8x square and 3xy. The factors of 8x square are 8x, x and factors of 3xy are 3xy. Here 8 and 3 are constant factors, hence called numerical factors, while x and y are variable factors, hence called literal factors. Tree diagram of representing the terms and factors. चलिए ट्री डायग्राम देखते हैं किस तरह से फैक्टर्स को और एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट किया गया है. देखिए आपके पास ये एक्सप्रेशन है, x को जब इसके फैक्टर्स निकाले तो x स्क्वायर का x और x होगा, 3xy के निकाले तो माइनस 3x एंड y एंड 2y स्क्वायर का 2y एंड y. ये इनके फैक्टर्स हैं, ये टर्म्स हैं, ये एक्सप्रेशन हैं, ये टर्म्स हैं और ये फैक्टर्स हैं. नाउ कोएफिशिएंट. कंसिडर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर y minus 5x. In this expression, if we are to find the coefficient of the literals, then coefficient of y is equals to 2x square, coefficient of x square is equals to 2y, and coefficient of x square y is equals to 2, and coefficient of x is equals to minus 5. The coefficient having numerical values are called numerical coefficients, and the coefficients having variables are called literal coefficients. Coefficients क्या है, जैसे कि आपको एक्सप्रेशन दे रखा है 2x स्क्वायर y. अगर आपसे y का कोफिशिएंट पूछा गया है तो 2x स्क्वायर, अगर आपसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया तो 2y, और अगर आपसे पूछा गया कि x स्क्वायर y का कोफिशिएंट क्या है तो वो है आपका 2. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है. देखिए आपके पास एक्सप्रेशन है, सबसे पहले टर्म्स हम अलग अलग कर लेंगे. ओके, अब x का कोफिशिएंट है 0.2. अच्छा,
इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0.02। इसी तरह से आपके पास अगले एक्सप्रेशन है 2a प्लस ए बी। इसको जब एक्सपेंड किया गया 2a प्लस ए बी, इसको एक्सपेंड करेंगे यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस 2b। ओके, तो आपके पास दो टर्म्स होंगी 2a एंड 2। a का कोफिशिएंट है 2, b का कोफिशिएंट है 2। इसी तरह से जो आपकी नेक्स्ट टर्म है, आपका जो नंबर है वो टर्म में इंक्लूडेड नहीं होगा जब तक कि उसमें कोई वेरिएबल ना आए, राइट। तो आपका -3x² एक टर्म है, तो इसमें x² के टर्म क्या है -3। इसी तरह से आपका एग्जाम्पल है आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। आपको सिर्फ वही आइडेंटिफाई करनी है टर्म जिसमें x है और उसी का आपको कोफिशिएंट बताना है। जैसे कि देखिए x प्लस 2y, इसमें आपके पास x है तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 1। इसमें x वाली टर्म देखिए आपकी कौन सी है। सबसे पहले तो आप देखिए ये एक्सप्रेशन को अलग अलग कर लीजिए। आपका इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 12y² और इसमें है 14y। नेक्स्ट इज 13y² प्लस 8yx। इसमें आपका सिर्फ आपको x वाली टर्म बतानी है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है आपका 8y। Next is like and unlike terms. All the terms having the same literal factors are called like terms or similar terms, while the terms having the different literal factors are called unlike terms. जैसे देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है 3x² माइनस 2xy² माइनस 5y²x। ये लाइक टर्म्स है क्योंकि इनमें आपके दो वेरिएबल्स हैं x एंड y और इनकी जो पावर्स है वो भी इक्वल है तीनों टर्म्स में। जबकि आपका देखिए 2x² एंड 2xy ये आपकी लाइक टर्म नहीं है क्योंकि देखिए आपकी पहली टर्म में x की पावर 2 है जबकि इसमें x की पावर 2 नहीं है, x की पावर सिर्फ 1 है, तो ये अनलाइक होंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। इसमें से देखिए 2xy इसके साथ कौन सा सिमिलर है, लाइक टर्म है, नहीं है, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे -4x²y। अब आप नेक्स्ट टर्म को देखिए, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 3 है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 7yx²। अब x की पावर 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, y की पावर 1 है तो y की पावर 1, तो इसीलिए आपके लाइक टर्म्स हो गए 4x² एंड 7yx²। ओके, इसी तरह से आप नेक्स्ट में देखिए ab² ab² ac² एंड 4/5a² b। सबसे पहले तो देखिए a की पावर 1, b की पावर 2, c की पावर 1, तो ऐसी कौन सी टर्म है आपके पास, दिस वन, a की पावर 1, b की पावर 2, c, तो इसलिए ये टर्म और ये टर्म आपकी लाइक टर्म्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। One variable algebraic expression. The degree of an algebraic expression in one variable is equal to the higher power of the variable in the expression. देखिए वन वेरिएबल एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो डिग्री होती है किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, उसमें क्या होगा, आपकी जो वन वेरिएबल है वो इक्वल होगा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि आपके पास एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है 3x4 माइनस 2x³ प्लस x² माइनस 1। अच्छा, हाईएस्ट पावर इसमें देखिए क्या है, 4 है ना, तो 4 जो होगी वो होगी डिग्री ऑफ द अबव algebraic expression. Next is two variables algebraic expression. When the variables are multiplied, the powers are added to decide the degree of the term. Consider the algebraic expression in two variables are as follows. देखिए अब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसमें आपके जो हैं, आपकी जो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हो गए, राइट। पहला है x² और अगला है y³। इसी तरह से इसमें एक x है, इसमें y है, इसमें x है और इसमें y है, तो दो वेरिएबल्स हो गए, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही वेरिएबल्स की पावर को प्लस करके निकालेंगे। जैसे कि देखिए इसमें x की पावर 2 है और इसकी 3, तो 2 + 3 आपका क्या हो गया 5, तो आपकी हाईएस्ट पावर है 5, इसीलिए जो 5 है वो क्या होगा, डिग्री होगा अबव एक्सप्रेशन का। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। सबसे पहले फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें देखिए आपकी हाईएस्ट पावर है 4, तो इसमें 4 होगा। इसमें हाईएस्ट पावर आपकी 3 है तो 3 होगा। इसमें हाईएस्ट पावर किसका होगा, देखिए 2 + 3 + 1, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 6। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपके पास एक्सप्रेशन है, आपको कांस्टेंट बताने हैं, आपको वेरिएबल्स बताने हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट है आपके 2 एंड 7, वेरिएबल्स y, नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी 1, नंबर ऑफ टर्म इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर इज 1। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट -10, वेरिएबल्स आपके पास है x, y, z, है ना,
और आपके पास नंबर ऑफ टर्म एक ही है, हाईएस्ट पावर है आपके पास 3। ये इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रोनोमियल। देखिए इसमें आपकी कितनी टर्म है, 1 2, तो ये आपका बाइनोमियल। इसमें आपकी एक टर्म है तो सिर्फ मोनोमियल। इसमें आपकी 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, एंड आपका ये भी बाइनोमियल होगा, राइट। जिसमें आपकी 4 टर्म्स होंगी वो आपका क्वाड्रिनोमियल होगा। Question number 3, using tree diagrams, identify the terms and their factors in the following expression. देखिए आपके पास है -12xy² प्लस 4xz। आपके पास 2 टर्म्स हैं, -12xy²। चलिए इसका फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 2 इंटू 3। 2x का आपका x ही रहेगा और y का आपका हो जाएगा y और एक और y। इसी तरह से आपकी जो दूसरी टर्म है 4xz, 4 के फैक्टर्स 2 इंटू 2, x का जो है x ही रहेगा एंड z का आपका z ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। वी कैन ऐड 2 or more terms only if they have same variables. So while performing addition of algebraic expressions, first we collect the different groups of like terms and add their coefficients according to each group. To do so, we follow the 2 methods, horizontal method, column method. देखिए आप 2 algebraic expressions को 2 या ज़्यादा टर्म्स को प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अगर उनमें सेम वेरिएबल है, ठीक है। तो उसे 2 तरीके से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड एंड कॉलम मेथड। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया गया है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड है आपका। इसमें क्या करते हैं कि इनको हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज कर दिया जाता है और फिर लाइक टर्म्स को ऐड किया जाता है। लाइक टर्म्स हमेशा याद रखना, लाइक टर्म के साथ ही प्लस होती है। नेक्स्ट इज एडिशन बाय कॉलम मेथड। इसमें आपको क्या करते हैं, कॉलम जैसे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं नॉर्मल, इसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी किया जाता है। देखिए आपको ये इस तरह से कॉलम्स बना के दिए गए हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड। आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से प्लस करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए 2x² y² प्लस -8x² y² प्लस -6x² y²। ओके, सो 2x² y² माइनस 8x² y² माइनस 6x² y²। अब ये देखिए लाइक टर्म्स हैं, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x² y², ये दोनों माइनस में है तो सिंबल आपका माइनस का आएगा, बट ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 4x² y²। अब इसे माइनस करेंगे तो -12x² y²। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐड द फॉलोइंग। तो बहुत इजी है, 3x एंड 9x। 3x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 12x। इसी तरह से आपको प्लस करना है 7a प्लस माइनस 3a, है ना, तो 7a माइनस 3a इज इक्वल्स टू 4a। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द लाइक टर्म्स फ्रॉम ईच ग्रुप एंड ऐड देम। आपको क्या करना है, लाइक टर्म को चूज करना है, सिर्फ उन्हें ही ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले आपका 3xy माइनस 2xy² माइनस 8xy। देखिए आपके ये जो तीनों ही टर्म्स हैं अलग अलग है। अब आपको क्या करना है, इनमें से लाइक टर्म्स को ग्रुप करना है एंड देन उसे ऐड करना है। तो देखिए लाइक टर्म आपकी ये हो गई, अब इन्हें ऐड कर दीजिए। 3xy प्लस माइनस 8xy, 3xy माइनस 8xy, so minus 5xy is the answer. Okay. Next is subtraction of algebraic expressions. In subtraction, the corresponding coefficients of like terms are subtracted. In this, sign of all the terms to be subtracted are changed. It is also done by 2 methods, horizontal method, column method. जिस तरह से हम addition करते हैं, subtraction को भी हम 2 methods से करते हैं, horizontal method and column method. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैसे horizontal method से किया जाता है। आपके पास एक expression है, this expression is to be subtracted from this expression. राइट, तो देखिए कैसे किया गया है इसको। देखिए आपके पास 3x² माइनस 2xy माइनस 4y²। आपके पास ये टर्म है जिसमें से आपको माइनस करना है सेकेंड टर्म, जो कि है आपकी माइनस
6s स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। ओके, सो आप इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। नाउ अब आपका ब्रैकेट ओपन होगा और बाहर माइनस है, सारे साइन आप चेंज कर देंगे। प्लस 6s स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, आपके जो लाइक टर्म्स हैं आप उन्हें पहले ग्रुप करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 3 माइनस होगा, 3x स्क्वायर, 4 माइनस 2 इज 2xy एंड 6y स्क्वायर। चलिए सेकेंड मेथड आपका कॉलम मेथड, सब्ट्रैक्शन बाय कॉलम मेथड। ये देखिए किस तरह से करते हैं। आपको सबसे पहले कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं, राइट, और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो लास्ट साइन होगा आप उसका उल्टा लिखेंगे, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एंड यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द लोअर टर्म फ्रॉम द ग्रेटर टर्म। अब आपको इसमें बोला गया कि लोअर टर्म को माइनस करना ग्रेटर में से। सो ग्रेटर टर्म आपकी कौन सी है, माइनस 3x और माइनस 8x। आपकी ग्रेटर टर्म कौन सी होगी, माइनस 3x। तो माइनस 3x में से आप माइनस करेंगे, माइनस 8x माइनस 3x प्लस 8x। सो आंसर इज 5x। अगेन 9ab माइनस माइनस 2ab 9ab प्लस 12ab। तो आपका हो जाएगा 12 प्लस 19 21ab। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से करना है, आपको माइनस करना है 15a स्क्वायर में से 10a स्क्वायर को माइनस, तो योर आंसर विल बी 5a स्क्वायर। दिस इज द हॉरिजॉन्टल मेथड। नेक्स्ट इज माइनस 7x स्क्वायर y को आपको करना है माइनस 8x स्क्वायर y में से आपको माइनस करना है 7x स्क्वायर y। ओके, और आपके पास ये जो 7x स्क्वायर है ये ऑलरेडी माइनस में है, तो 8x स्क्वायर y प्लस 7x स्क्वायर y, 8 प्लस 7 15x स्क्वायर y। चलिए नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हैव वन और मोर देन वन वेरिएबल्स। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशन। देखिए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होंगी। तो वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1, जहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है। देखिए आपके पास एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ये एक्सप्रेशन है आपकी, इसमें x आपका वेरिएबल है, x की वैल्यू दे रखी है, तो हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। सो लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू 1, 4 1 स्क्वायर माइनस 6 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता तो 4 आ जाएगा, 6 प्लस 1। ये आपका देखिए क्या होगा 4 माइनस 6, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके दोनों प्लस के हैं, 5 माइनस 6 एंड माइनस 1, यानी कि जो आपकी जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की वो आपकी कितनी आई है, -1। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ p इज इक्वल्स टू 5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ। p की वैल्यू दे रखी है 5 और आपको वैल्यू निकालनी है p स्क्वायर प्लस 6 वेयर p इज इक्वल्स टू 5। नाउ पुट 5 स्क्वायर प्लस 6 25 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 31। ओके, नेक्स्ट है आपका 4p प्लस 7। अगेन p की वैल्यू 5 है तो 4 इंटू 5 प्लस 7, 20 प्लस 7 is equals to 27। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 3। अब आपके पास दो वेरिएबल्स है, दोनों की वैल्यूज दे रखी है, राइट। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आपके पास x की वैल्यू है, x आपका है 4 एंड y इज इक्वल्स टू 3। सो x यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपके पास 5a माइनस, आपके पास क्या है 5a माइनस 5 माइनस 7a प्लस 3a
प्लस 2। देखिए आपके पास एक्सप्रेशन है, सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे और उसके बाद हम रखेंगे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू है आपके पास -1, सो 5a माइनस 7a प्लस 3a माइनस 5 प्लस 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो देखिए आपका -2a प्लस 3a माइनस 3, 3 माइनस 2 a माइनस 3, a की वैल्यू है आपके पास -1 माइनस 3, -1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला एंड रूल्स यूजिंग algebraic expressions. Perimeter of formula, square, let a be the side of a square, then perimeter of the square is equals to 4a. Rectangle, let L be the length and B be the breadth of a rectangle, then perimeter of rectangle is equals to 2L plus B. Equilateral triangle, let X be the side of an equilateral triangle, then perimeter of the equilateral triangle is equals to 3x. Regular pentagon, let X be the side of a pentagon, then perimeter of the regular pentagon is equals to 5x. ओके ये चलिए, ये आपके सारे जो हैं पेरीमीटर के फॉर्मूले हैं, आपको उनकी जगह क्या रखना है, जैसे कि साइड्स आपके a लेट कर लिया, लेंथ के लिए l, ब्रेड के लिए b. नेक्स्ट इज एरिया फॉर्मूला, स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल्स टू साइड. ओके नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड, है ना, और इसे हम कैसे लिखेंगे, L आपकी लेंथ है, B ब्रेथ है. इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल है आपका, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वेयर B इज इक्वल्स टू बेस एंड H इज इक्वल्स टू हाइट. चलो नेक्स्ट देखते हैं सम रूल्स फॉर नंबर पैटर्न्स. इफ अ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, देन इट्स सक्सेसर इज n plus 1 एंड प्रीडिसेसर इज n minus 1. फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल्स टू 10, देन देखिए n अगर आपका 10 है तो उसका सक्सेसर क्या होगा, n plus 1, यानी कि 10 plus 1 is equals to 11, और इसका प्रीडिसेसर होगा n minus 1, यानी कि 10 minus 1 is equals to 9. Second is, if a natural number is denoted by n, then 2n represents even number and 2n plus 1 represents odd number. अगर n आपका नेचुरल नंबर है तो आपका इवन नंबर रिप्रेजेंट करेगा 2n एंड ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 2n plus 1. जैसे कि आपकी वैल्यू है n की 15, सो इवन नंबर होगा 2n, यानी कि 2 into 15 is equals to 30, एंड ऑड है आपका 2n plus 1. तो 2n की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 30 plus 1 आपका ऑड नंबर होगा. सम मोर नंबर पैटर्न्स, ऑब्जर्व द पैटर्न शोन इन गिवन फिगर. देखिए 1 square 2 3 4 5 इस तरह से. फॉर 1 शेप वी नीड 4 sticks, फॉर 2 shapes 7 sticks, फॉर 3 shapes 10 sticks and so on. We can see that 4 7 10 13 16 dash is equals to 3 into 1 plus 1, 3 into 2 plus 1, 3 into 3 plus 1, 3 into 4 plus 1 and 3 into 5 plus 1. For n such shapes, number of sticks required 3n plus 1. चलिए नेक्स्ट शेप देखिए आप, इसमें क्या है, देखिए नंबर ऑफ स्टिक्स कितने चाहिए, पहले 3 then 5 then 7 and 9, और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, 2 into 1 plus 1 3, 2 into 2 plus 1 5, 2 into 3 plus 1 7 and 2 into 4 plus 1. यानी कि अगर n नंबर n ऐसी शेप्स हमें नंबर ऑफ स्टिक्स की बनानी है तो कितनी चाहिए होगा हमें, 2n plus 1. इसी तरह से इसमें देखिए आपका पैटर्न इस तरह से बन रहा है, 3 into 1 plus 2, राइट. तो आपका क्या होगा, n ऐसी शेप्स के लिए 3n plus 2, और सेम ये आपका इसमें भी होगा. Now patterns in geometry, the number of diagonals drawn from one vertex of a quadrilateral is equals to n minus 3. देखिए जैसे आपका इसमें है n minus 3, यानी कि आपका क्या है, n आपका जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हम जब निकालते हैं किसी वो होगा आपका n minus 3, यानी कि n है आपकी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. जैसे इसमें आपका डायगोनल कैसे निकलेगा, देखिए कितनी साइड्स हैं, 4, तो 4 minus 3 is equals to 1, इसके 1 डायगोनल. नेक्स्ट शेप में आपके क्या है, देखिए कितनी साइड्स है, 6, 6 minus 3 is equals to 3, एंड इसमें आपके साइड्स हैं 7, तो 7 minus 3 is equals to 4, यानी इतने आपके डायगोनल्स बनेंगे. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ द डिजिट्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ. यू मस्ट हैव सीन सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैलकुलेटर्स. आपने ऐसे जो फिगर्स हैं कैलकुलेटर्स में या फिर आपके डिजिटल वॉचेस में ज़रूर देखी होगी. ओके तो आपको इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और आपको लिख के भी दिया है 6, 11, 16, इसे ऑब्जर्व करना है और फिर आप इसके अकॉर्डिंग इसे कंप्लीट करेंगे. फाइंड द अलजेब्रिक फॉर्मूला
for n such combination and then find how many line segments are required to form 12 such digits, 50 such digits and 100 such digits. इसको आपने अभी इस तरह से जो मैंने आपको पैटर्न बताया ऐसे ही करना है. क्वेश्चन नंबर 2 is find the perimeter of a triangle whose sides are x plus 2, 2x minus 1 centimeter and 4x plus 2 respectively. देखिए आपको पैरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का. पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको पता है सम ऑफ 3 साइड्स, राइट? तो आपको 3 साइड्स गिवन है, तो आपकी जो फर्स्ट साइड है उसकी वैल्यू है x प्लस 2 प्लस आपकी जो सेकेंड वैल्यू है दैट इज 2x माइनस 1 सेंटीमीटर एंड लास्ट वन इज 4x प्लस 2. नाउ x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 4x प्लस 2. अब x को साथ में रखेंगे आप, x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 2 minus 1 plus 2. 1 plus 2, 3, 7x. Okay. 2 minus 1, 1 plus 2, 3. तो ये आपका क्या आ गया? Perimeter of triangle. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड. आपको स्क्वायर का पैरीमीटर निकालना है एंड पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आपका होता है 4 इंटू साइड. 4 साइड है आपकी 9x माइनस 1. So 4 9s are 36 centimeter, 36x minus 4 centimeter. इसी तरह से आपको रेक्टेंगल का निकालना है. आपको लेंथ एंड ब्रेथ आपको गिवन है. नाउ यू कैन फाइंड इट आउट. Overview. A combination of constant and variables connected by sum of all of the 4 basic operations is called an algebraic expression. An algebraic expression with one term is called a monomial. An algebraic expression with 2 terms is called a binomial. An algebraic expression with 3 terms is called a trinomial. An algebraic expression containing 1 or more terms is called a polynomial. The coefficients having numerical values are called numerical coefficient and the coefficients having variables are called literal coefficients. The terms having same literal factors are called like terms, otherwise they are called unlike terms. In addition or subtraction, coefficients of like terms are added or subtracted. देखिए आपके algebraic expression में अगर एक term होते हैं तो monomial, 2 binomial, 3 ट्राइनोमियल, और कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपकी एक या उससे ज़्यादा टर्म्स होती है तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. कोफिशिएंट आपका जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट अगर आपका वेरिएबल है तो लिटरल कोफिशिएंट. और जब कभी भी हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो आप क्या करेंगे, जिन कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, जो कोफिशिएंट होते हैं लाइक टर्म्स के, हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.